اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل اگلی ڈکلنگ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا، میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ناچیز کو روبینہ حمید شکلگار کہتے ہیں۔ میں پچھلے 15 سال سے انجمن خیرالاسلام اردو ہائی اسکول ستارہ میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہی ہوں۔ جماعت ہشتم، سبق نمبر 2، زمین کا اندرونی حصہ۔ آئیے بچوں، اب ہم ہماری جغرافیہ کی کتاب کے سبق نمبر 2، زمین کا اندرونی حصہ، اس کے صفحہ نمبر 2 کا تجربہ کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے یہاں پر دودھ کو گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ گرم کرنے سے پہلے دودھ مائع حالت میں تھا۔ آئیے اب کچھ سوالوں کی جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دودھ کو گرم کرتے وقت وہ کس حالت میں تھا؟ تو دودھ کو گرم کرتے وقت وہ مائع حالت میں تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ ابل رہا ہے، یہ مائع حالت میں ہے۔ دودھ میں ابال آتے وقت دودھ سے کون سی چیز برآمد ہو رہی تھی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ دودھ گرم ہو رہا ہے اور دودھ سے بھاپ نکل رہی ہے۔ بچوں، ہم نے دودھ کو ڈھانک کر کچھ وقت کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ آئیے اب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال ہے کہ برتن کے ڈھکن پر کیا جمع ہے؟ تو برتن کے ڈھکن پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پانی کے ذرات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بھاپ برتن کے ڈھکن سے ٹکرا کر وہیں پر ٹھنڈی ہو گئی ہے اور پانی کے بوندوں کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ کا، جو یہ بالائی ہے وہ دودھ کے مقابلے میں، یعنی جو پتیلے کے اندر دودھ ہے اس کے مقابلے میں گرم ہے یا ٹھنڈی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ بالائی دودھ کے مقابلے میں ٹھنڈی ہے۔ تو ہم نے یہ سیکھا اس تجربے کے ذریعے کہ گرم کرنے سے پہلے دودھ پوری طرح سے مائع حالت میں تھا۔ دودھ میں ابال آنے کے بعد اس میں سے بھاپ باہر نکل رہی تھی۔ کچھ وقفے کے بعد دودھ پر گاڑھی بالائی دکھائی دیتی ہے۔ بالائی اندر کے دودھ کے مقابلے میں کم گرم ہے۔ اس پر سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ برتن میں بالائی کی سطح پہلے ٹھنڈی ہوئی اور اس کے نیچے کا دودھ مائع کی شکل ہی میں گرم رہا۔ ایسا ہی زمین کے ٹھنڈے ہونے کے عمل میں ہوا ہوگا۔ سائنسدان اس خیال سے متفق ہیں کہ زمین کا وجود بھی نظام شمسی کے ساتھ ہوا، البتہ ابتدا میں زمین تپتے ہوئے گیس کے گولے کی طرح تھی۔ اپنے محور پر گھومتے گھومتے وہ ٹھنڈی ہوتی گئی۔ ٹھنڈا ہونے کا عمل اوپری سطح سے زمین کے مرکز کی جانب ہونے کی وجہ سے زمین کا بیرونی حصہ یعنی قشر ارض ٹھنڈا اور سخت ہوتا گیا، لیکن اندرونی حصے میں زیادہ حرارت تھی جو سطح زمین سے اندرونی حصے کی جانب متواتر بڑھتی گئی۔ نیز ایک مخصوص گہرائی میں زمین کا اندرونی حصہ نیم سیالی حالت میں ہے۔ زمین کا اندرونی حصہ کیسا ہے، اس کے بارے میں آج بھی انسان کے دل میں تجسس موجود ہے۔ اب تک زمین کے اندرونی حصے کو عملاً دیکھنا ممکن نہیں ہو پایا ہے۔ اسی وجہ سے ماہرین ارضیات نے مختلف طریقوں سے مطالعہ کر کے کچھ اندازے لگائے ہیں۔ اس کے لیے آتش فشاں سے باہر نکلنے والے مادوں اور زلزلوں کا خصوصی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آتش فشاں کے پھٹنے سے باہر نکلنے والے مادوں میں انتہائی گرم سیال لاوا، گیس، بھاپ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ لاوے کے سرد ہونے پر آتشی چٹان بنتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت، کثافت، قوت ثقل، قوت دباؤ کے مطالعے سے لگائے گئے اندازوں کی مدد سے اندرونی حصے کی ساخت سمجھ میں آئی۔ مثلاً کان میں گہرائی میں جانے پر درجہ حرارت میں اضافہ پایا گیا۔
आतिश फिशां के फटने से बाहर आने वाला लावा गर्म होता है। जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में हर साल बेशुमार ज़लज़ले आते हैं, जिसकी वजह से ज़लज़ले की लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें जमीन के अंदरूनी मरकज से सफर करती हैं। इनकी सिमत और रफ्तार का मुताला करके अंदरूनी हिस्से की साख्त के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। कशर अर्ज का मुताला करने के लिए इंसान ने नल की नुमा सुराख भी बनाए हैं। आइए बच्चों, ये हमारे पास 4 अलग अलग रंगों के मोल्डिंग क्ले हैं। अब इन 4 रंग के अलग अलग मोल्डिंग क्ले की मदद से हम तजुर्बा करेंगे और ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, अब इस मोल्डिंग क्ले के अलावा हमने सभी क्ले को चपटा कर लिया है। अभी सबसे पहले हम इस क्ले के अंदर इसको डालेंगे और पूरन पोली की तरह इसको इससे कवर करेंगे। अब ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम इस पीले क्ले की लेयर चढ़ाएंगे, परत चढ़ाएंगे। तीसरी परत चढ़ाने के बाद हमारा ये इस तरह गोला तैयार हो गया है। अब हम इसे हल्के नीले रंग के मोल्डिंग क्ले की परत चढ़ाएंगे। ये देखिए बच्चों, इस तरह हमारा ये फाइनल गोला तैयार हो गया है, यानी हमारी जमीन तैयार हो गई है। आइए अब छुरी की मदद से इसे काटते हैं। अब ये देखिए, आपको इस तरह नजर आएगा। आइए जमीन के अंदरूनी हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए, ये है जमीन का अंदरूनी मगज, ये है बैरूनी मगज, ये वस्ती खौल है और ये है जमीन का कशरे अर्ज, जिसमें सयाल और सायमा ये बर्रे आज़मी गिलाफ होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तजुर्बा आपके समझ में आ गया होगा। आप इसको घर में भी करके खुद इससे सीख सकते हैं। अभी अभी हमने जमीन के अंदरूनी हिस्सों को कलरफुल मोल्डिंग क्ले की मदद से समझा। आइए अब इस जुदूल पर एक नजर डालें और मजीद मालूमात हासिल करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, सतह जमीन से मरकज की जानिब होने वाली तब्दीलियों में बिलखुसूस हरारत, कसाफत का शुमार होता है। इन दोनों अज्जा यानी हरारत और कसाफत, इन अज्जा की तब्दीली की बुनियाद पर जमीन की अंदरूनी हालत के दर्ज झैल हिस्से तैयार होते हैं। पहले 3 अहम हिस्से हैं कशर अर्ज, वस्ती खौल और मगज। कशर अर्ज के भी 2 हिस्से हैं, बर्रे आज़मी गिलाफ और बहरे आज़मी गिलाफ। वस्ती खौल के भी इसी तरह 2 हिस्से हैं, जर्री वस्ती खौल और बिल वस्ती खौल। मगज को भी इसी तरह 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, बैरूनी मगज और अंदरूनी मगज। आइए आप कशर अर्ज की मालूमात हासिल करें। जमीन के सबसे ऊपर का हिस्सा ठोस शक्ल का है, इसे कशर अर्ज कहते हैं। कशर अर्ज की मोटाई हर जगह यकसा नहीं है। इसकी औसतन यानी आमतौर पर इसकी मोटाई 30 से 35 किलोमीटर होती है। बर्रे आज़मों के नीचे मोटाई 16 से 45 किलोमीटर के दरमियान होती है। कोहिस्तानी इलाकों में जहां पे पहाड़ होते हैं, वहां पर कशर अर्ज की मोटाई 40 किलोमीटर से ज्यादा और समंदरी फर्श, वहां पर कशर अर्ज की मोटाई 10 किलोमीटर से भी कम होती है। सतह जमीन के नीचे जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, दर्ज हरारत में इजाफा होता जाता है। इसके बाद वस्ती खौल में दर्ज हरारत के बढ़ने के तनासुब में कमी वाक़ होती है, लेकिन मगज के इलाके में फिर से दर्ज हरारत में इजाफा होता है। जमीन के मरकज में 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हरारत होता है। उबलते हुए पानी का दर्ज हरारत 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो अंदाजा लगाइए 6000 डिग्री सेल्सियस यानी कितना गर्म होता होगा। अर्ज वस्ती खौल और मगज के मुकाबले में बहुत कम मोटाई का है और इसके दो हिस्से हैं यानी सयाल और साइमा। आइए बर्रे आज़मी गिलाफ के सयाल के बारे में मालूमात हासिल करें। ये खुसूसन सलीका, सयाल खुसूसन सलीका और एल्यूमिनियम इन बुनियादी अनासिर से बना है। इन अनासिर की मिकदार ज्यादा होने की वजह से पहले इस तह को सयाल कहा जाता था। चट्टानी कुर्रे की कसाफत 2.65 से 9.90 ग्राम मकब सम है। इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। इस तह में उमूमन ग्रेनाइट चट्टानें ही पाई जाती हैं। अब देखते हैं साइमा के बारे में। कशरे अर्ज की ये दूसरी तह है। ये तह सिलिका और मैग्नीशियम के आमेजे से बनी है। पहले इसे साइमा कहा जाता था। इस तह की औसत मोटाई 7 से 10 किलोमीटर है। बर्रे आज़मी गिलाफ की कसाफत 2.9 ग्राम मकब सम से 3.3 ग्राम मकब सम है। इस तह में उमूमन बसाल्ट और गैब्रो चट्टानें पाई जाती हैं। आइए वस्ती खौल के बारे में जानें। जमीन का वस्ती खौल। जमीन का वस्ती खौल कशरे अर्ज के नीचे वस्ती खौल की तह पाई जाती है। सबसे पहले कशरे अर्ज, उसके बाद वस्ती खौल। वस्ती खौल के दो झैली हिस्से होते हैं, बिलवस्ती खौल और जर्री खौल। बिलवस्ती खौल ज्यादा मुतहर्रिक होता है यानी इसी में ज्यादा हरकत देखने को मिलती हैं। इसी तह में लावा जमा होता है। आतिशफिशा फटने पर यह लावा जमीन की सतह पर आ जाता है। वस्ती खौल की इस तह को कमजोर वस्ती खौल भी कहते हैं। ज़लज़लों के मराकिज़ भी उमूमन इसी तह में पाए जाते हैं। सतह जमीन से तकरीबन 42 किलोमीटर की गहराई के बाद ये तह शुरू होती है। वस्ती खौल में होने वाली जबरदस्त हरकत की वजह से सतह जमीन पर पहाड़, शगाफ वादियां बनती हैं। आतिशफिशा फटते हैं और जलजले आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस तह में 2400 से 2900 किलोमीटर की गहराई का दर्ज हरारत 2200 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यहाँ की चट्टानों की साख्त और कसाफत में अचानक तब्दीली होती है। माहिरीन का अंदाजा है कि इस तह की गहराई 2870 किलोमीटर होगी। इस तह की औसत कसाफत 4.5 ग्राम मकब सम है और गहराई के मुताबिक कसाफत बढ़ती जाती है। जैसे जैसे गहरी होती जाती है ये तह, गहराई में कसाफत में इजाफा होता है। इसकी वजह बढ़ता हुआ दबाव है। जर्री वस्ती खौल की कसाफत 5.7 ग्राम मकब सम है। आइए अब मगज के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि मगज की दो किस्में होती हैं, अंदरूनी मगज और बैरूनी मगज। सतह जमीन से अंदाजन 2900 किलोमीटर गहराई के नीचे मगज का हिस्सा शुरू होता है। वस्ती खौल के नीचे और जमीन के मरकज तक का हिस्सा मगज है। मगज की मोटाई 3471 किलोमीटर है। अंदरूनी मगज और बैरूनी मगज इस तह के दो हिस्से तस्लीम किए गए हैं। आइए बैरूनी मगज के बारे में बात करते हैं। बैरूनी मगज सतह जमीन से 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। जलजले की सानवी लहरें इस हिस्से में से नहीं गुजर सकती। ये हिस्सा सयाल होने की वजह से जलजले की लहरें
यहाँ जज्ब हो जाती हैं। माहिरीन ने यह अंदाजा लगाया है कि शायद मगज का ये हिस्सा सयाल या नीम सयाल होगा। ज़लज़ले की इब्तिदाई लहरें अलबत्ता इस हिस्से से गुजर सकती है, लेकिन यहाँ इनकी रफ्तार सुस्त हो जाती है। बैरूनी मगज की कसाफत 9.8 ग्राम मकब सम है। इस बैरूनी सयाल मगज का दर्ज हरारत तकरीबन 5000 डिग्री सेल्सियस है। जमीन के अंदरूनी हिस्से का बैरूनी मगज सयाल मादों से बना हुआ है और इस तह में लोहे की कचधात की कसरत है। इसके मुतालिक हम सीख चुके हैं। बैरूनी मगज की सयाल हालत की वजह से इस हिस्से में उमूदी लहरें पैदा होती हैं। इस तह की ये और एक खासियत है। बैरूनी और अंदरूनी मगज में पाई जाने वाली हरारत के दरमियान फर्क की वजह से उमूदी लहरें पैदा होती हैं। जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से इन लहरों को लट्टू की तरह रफ्तार हासिल होती है। सयाल मादनियात की वजह से डूबते हुए लट्टू की तरह हरकत करने वाली इन लहरों में बिजली पैदा होती है और मकनातीसी कुव्वत का मैदान तैयार हो जाता है। इसे जमीनी कशिश या तबई जनरेटर भी कहते हैं। जमीन का ये मकनातीसी मैदान सैयारे जमीन के बाहर भी बहुत दूर तक असर करता है। इसीलिए इस मकनातीसी मैदान की वजह से जमीन के एतराफ एक किस्म का गिलाफ तैयार हो जाता है। इस गिलाफ की वजह से सूरज की सिमत से आने वाली बाद शम्स से कुर्रे हवा की हिफाजत होती है। जमीन पर तैयार होने वाले इस मकनातीसी मैदान को मकनातीसी कुर्रा भी कहते हैं। जमीन का ये पांचवा कुर्रा निहायत अहम है। आइए अब बात करते हैं अंदरूनी मगज की। अंदरूनी मगज सतह जमीन के नीचे 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर जमीन के मरकज तक पाया जाता है। ये जमीन के अंदरून का मरकजी हिस्सा है और ठोस शक्ल का है। इस ठोस कुर्रे की कसाफत 13.3 ग्राम मकब सम होती है। इस तह में खास तौर पर लोहे और कुछ मिकदार में निकल जैसी मादनियात पाई जाती हैं। मगज में मादनियात जबरदस्त दबाव के जेर असर रहने की वजह से अंदरूनी मगज ठोस शक्ल में है। यहाँ का दर्ज हरारत तकरीबन सूरज की सतही दर्ज हरारत के बराबर होता है। अब तक आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, शेयर किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पसंदगी ही मेरी हौसला अफजाई है। आगे भी अपनी मोहब्बतें, अपनी इनायतें मुझ पर और मेरे चैनल पर बरकरार रखिए। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, अपना ख्याल रखिए। मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।